Can you see the screen? Yes, sir. Till now we have completed the 2 chapters in this paper. Am I correct? This is your 4th semester. Do you remember? And the examination of this semester you are going to face on the 29th of this month. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. As far as our paper is considered, I think this paper number is 12th. Am I correct? 12वां नंबर का पेपर है, सही है? Yes, sir. And this 12th number paper has the side heading solid state physics. It consists of the 4 chapters. We have to cover the 4 chapters, but I don't think that up to 29, including 3 days of Eid, how much is possible. But let us see what we can do. If you permit, then we will take 1 more or 2 more extra period to complete the 3rd chapter. My intention is that at least 3 chapters are to be completed. Isn't it? 3rd chapter we are going to start here today. After having seen crystal structure, definition of solid, then in the solid or in the crystal, these atoms are there solid or crystal. Solid के अंदर ही crystal रहता. It is made up of large number of atoms. Am I correct? These atoms are bound together, are joined together in solid with the help of different bonds. Isn't it? Yes, sir. सॉलिड किसका बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का. बहुत सारे सॉलिड हैं, उसमें भी क्रिस्टल की भी बात करें तो क्रिस्टल भी किसकी किस्म है जी? सॉलिड की किस्म है. लेकिन दिगर सॉलिड में और क्रिस्टल में फर्क क्या है? Periodic arrangement. हाँ, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो सॉलिड कोई भी हो, उसके अंदर एटम्स रहते, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स रहते, और ये एटम्स एक दूसरे को बाउंड है, इनके दरमियान बंदिश है, और ये मुख्तलिफ किस्म की बंदिशों से डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या इन्होंने मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर एक सॉलिड को जन्म दिया. Am I correct? Different type of bandish, different type of bonds are, which are they? Covalent, ionic, metallic, heterogen, van der Waals. Am I correct? Yes, sir. Yes. Now, after having seen somewhat basic concept of the solids as well as different types of bonding, etc., now we are going to consider the properties of solid, because we know solid is one form of the matter. मादे की 3 किस्मों में से एक है ठोस, माय, गैस. Am I correct? उसमें सॉलिड एक किस्म है. जैसा गैस की बहुत सारी खसूसियात है, गैस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसी तरह सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज है. अपन जब बॉन्ड देख रहे थे उस वक्त हमने उनके प्रॉपर्टीज देखे थे. Am I correct? Now we are going to consider the thermal properties of solid. The title of the paper number 12, chapter number 3, thermal properties of solid. May I go ahead, please? चलो आगे. Yes. These Yes, sir. are the articles. Yes, sir. These are the articles that we have to cover in this particular chapter number 3. टाइटल क्या है चैप्टर नंबर 3 का? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ये 5 आर्टिकल तो अलोकेटेड है. इससे रिलेटेड कुछ इस तरह के आर्टिकल हमको देखने हैं. तो दीज आर द आर्टिकल्स अलोकेटेड फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3. मे आई गो अहेड नाउ? बिफोर गोइंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स, few terms, few concepts we must know, and one of the important concept that may also arises in MCQ in your examination is the lattice vibration and phonons. Now question is that what is lattice vibration? Now since from the study of last 2 chapters, I think you are familiar that solid, it is made up of large number of atoms. Am I correct? All these Yes. atoms, they are bound together in the solid with the help of the band. One thing. Secondly, these atoms in the solid, they are executing a particular type of vibration about their mean position. एक नई बात आपको बता रही, मतलब पुरानी है, जो क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है, कि सॉलिड के अंदर जो एटम है ना, वो क्या करते हैं अपने मीन पोजीशन पर ऐसा करते रहते. अब आपको बोलेंगे, अब
आप अगर को बोले कि देखो ये सॉलिड है, इसके अंदर का आइटम हो रहे बताते तो ओपन आंख से नहीं देख सकते, ये एटॉमिक फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। एम ए करेक्ट? ऐसा आंख से बता देते को का आइटम वाइब्रेट हो रहे बता बोले तो इज इट नॉट पॉसिबल। लेकिन अंदर से अगर इसकी संजीदगी से देखे, अगर आपने एक पर्टिकुलर किस्म का जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया या क्वांटम मैकेनिकली अगर बात करें, तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं ये अपने मीन पोजीशन पर, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मुतवातिर क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट होते या ऑसिलेशंस करते रहते। ये ऑसिलेशंस करने के वास्ते उनको एनर्जी कौन देता? उनका अपना टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? हर एक बॉडी को टेम्परेचर है ना भाई, दुनिया की कोई चीज ऐसी है कि जिसको कोई एनर्जी नहीं है जिसके पास? तो ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, the atoms of the solid execute the oscillation about their equilibrium position। समझ में आई बात? पहला सेंटेंस समझ में आया आपके? बस बिगिनिंग में समझा तो आखिर चीज समझ में आती। समझ में आ गया? जी सर। ये सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो अपने टेम्परेचर, कुछ तो भी रहेगा ना, बाहर से दिए तो फिर तो ज्यादा करेंगे, लेकिन कुछ तो भी टेम्परेचर रहता है उसका, कुछ तो भी एनर्जी उसके साथ लगी हुई रहती, और उस एनर्जी के नतीजे में ये एटम्स क्या करते रहते हैं? आप सॉलिड के अंदर ही रहते, बाहर नहीं आते, लेकिन वहां पर भी अपने मेन पोजीशन पर इस तरह का ऑसिलेशंस करते रहते। समझ में आ गई बात? अब यस सर। अब क्रिस्टल के अंदर भी ये करिए, क्रिस्टल भी कौन है? सॉलिड ही है। क्रिस्टल भी कौन है? सॉलिड है। सॉलिड ही है। तो लिहाजा क्रिस्टल के अंदर भी जो एटम्स लगे हुए हैं, सोडियम क्लोरीन मिसाल के तौर पर, है कि नहीं, ये भी अपने मेन पोजीशन पर क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। ऑसिलेशन। So these oscillations of the atoms in the crystal lattice are caused as lattice vibration। समझ में आ गया आपको लेटाइस वाइब्रेशन की डेफिनेशन? क्रिस्टल के अंदर जो एटम अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इन वाइब्रेशंस को क्या नाम से पुकारते हैं हम? लेटाइस लेटाइस वाइब्रेशन। आ गया समझ में डेफिनेशन लेटाइस वाइब्रेशन की? ये टर्म इसलिए जरूरी है कि आगे उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर है, इस वास्ते यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि दी सॉलिड और crystal lattice which is made up of atoms are arranged as a periodic manner, no doubt, but in their positions also they vibrate about their mean position, and these vibration of the atoms in the lattice are called as the lattice vibration। Are you agree with this sentence? Yes। अब वाइब्रेशंस करते तो कम रहते, ज्यादा रहते, कौन से डायरेक्शन में है, कब कितने टेम्परेचर पे बढ़ेंगे, कितने टेम्परेचर पे कम होंगे, सारा दारो मदार सॉलिड की प्रॉपर्टीज का, सॉलिड के जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पर स्पेसिफिक हीट, सुने क्या आपने लफ्ज स्पेसिफिक हीट कभी सुनने में आया आपके? यस सर। थर्मल कंडक्टिविटी, मुंतकिली हरारत, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मुंतकिली हरारत। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बरखी रो का बहाव। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन, बैंड गैप। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस, डिफ्यूजन, मैकेनिज्म, फेज चेंज। ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर किसकी खुसूसियात है, किसके जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? सॉलिड के। सॉलिड अगर है तो इसके अंदर से बर्फी रो पास होती क्या? सॉलिड अगर है तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या? सॉलिड है तो कितना जो है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका ट्रांसमिटेंस कितना है, इसका एब्सॉर्प्शन कितना है, इसका बैंड गैप कितना है, इसका इलेक्ट्रिक लॉस कितना है, इसका जो है तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो तमाम जो डिस्कशन है ये सब क्या है? सॉलिड के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन डिसाइड करेगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। लैटिस वाइब्रेशन डिसाइड करेंगे, या लैटिस वाइब्रेशन बोले तो क्या? लैटिस के अंदर एटम्स का अपने इक्विलिब्रियम पर ऑसिलेट करना। अभी ऑसिलेशन कम है, इनकी फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेशन को क्या क्या कौन कौन से कंसेप्ट लगे हुए रहते हैं? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड,
बराबर है क्या? एक्सिलरेशन, ये सब Yes. जो भी चीज हरकत में रहती है उसके साथ कौन कौन से कंसेप्ट जुड़े हुए रहते हैं जी? वेलोसिटी रहती, बराबर है क्या? अगर उनको मास है तो मोमेंटम रहती, बराबर बोल रहा हूं मैं? अनम्यूट रह के बोलिए, Yes. यस बोलिए, यस नो, Yes, sir. बराबर है। और क्या रहता वाइब्रेशन के साथ? फ्रीक्वेंसी, ऐसा कर रहे क्या, ऐसा ऐसा कर रहे, बराबर है क्या? और Yes, sir. एम्पलीट्यूड, तो ये Yes, sir. लैटाइस वाइब्रेशन की ये क्या है? खुसूसियात है, ये उनकी प्रॉपर्टीज है। भाई किसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, किसी के अंदर एनर्जी कम रहेगी, किसी के अंदर मोमेंटम कम रहेगी, किसी के अंदर मोमेंटम ज्यादा रहेंगी, किसी के अंदर जो है तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, किसी के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, कुछ करे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ाए तो कम होंगी ज्यादा। ये तमाम खुसूसियात, तमाम कैरेक्टरिस्टिक किसके है बाबा? ये Lattice vibration. Lattice vibrations. वाइब्रेशन कम है, ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, ज्यादा है, मोमेंटम कम है, ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, ज्यादा है। ये प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट डिसाइड करेंगे सॉलिड के या क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स को। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक? मिसाल लैटिस वाइब्रेशन की वजह से समझेंगे स्पेसिफिक हीट कम है क्या, ज्यादा है। लैटिस वाइब्रेशन की वजह से हम ये बोल पाएंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी कम है क्या, ज्यादा है। लैटिस वाइब्रेशन डिसाइड करेंगे कि ये बरकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें है क्या, लिहाजा यानी कि बरखी रहो इसमें से पास होती क्या, नहीं होती। ये लैटिस वाइब्रेशन डिसाइड करेंगे कि वो सॉलिड, वो क्रिस्टल ऑप्टिकली कैसा है, उसमें ट्रांसमिटेंस कितना है, लाइट अगर गई तो ट्रांसमिट कितनी होती, लाइट अगर गई तो एब्सॉर्ब कितनी होती। समझ में आ रही बात? बैंड गैप कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मतलब डाइलेक्ट्रिक लॉस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म ये डिसाइड करेगा, फेज चेंज ये डिसाइड करेगा। लिहाजा लैटिस वाइब्रेशंस आर रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल Solid. या सॉलिड। Crystal. कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज? खास तौर पे स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ गई बात? चलूं आगे। लैटिस वाइब्रेशन को आप अगर आप कभी भी पूछे आप लैटिस वाइब्रेशन क्या है बोलो, तो कैसे लॉजिक लगेंगे आप? लैटिस बोले तो क्रिस्टल के अंदर, वाइब्रेशन बोले तो ऑसिलेशन। क्रिस्टल के अंदर एटम का वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज Lattice vibration. चलूं आगे। Yes, sir. चलिए, atoms in the crystal are considered to be residing at the particular lattice sites। हमको मालूम है कि हम पहले बोल क्या है, क्रिस्टल की डेफिनेशन ही बोलते वक्त क्या बोले कि एटम क्रिस्टल के अंदर कहाँ रखे हुए, अपने मखसूस मुकाम पे है, बोलते कि नहीं? पर्टिकुलर, पीरियोडिक, है कि नहीं? लेकिन इस Yes, sir. ये बोल रहे हैं कि अगरचा के हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स अपने लेटाइस के मखसूस मुकाम पर है, नो डाउट अपने मखसूस मुकाम पर ही है, बट हकीकत में, बट इन रियलिटी दे अंडरगो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन द नेबरहुड ऑफ देयर रेगुलर पोजीशन इन द लेटाइस। एक सेंटेंस याद रखिए, अगरचा के क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल लेटाइस के अंदर एटम अपने मखसूस मुकाम पर मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये है कि वो अपने मुकाम पर तो है, लेकिन अपने नेबरिंग मुकाम पर उनका लेन देन या फ्लक्चुएशन मुतवातिर जारी है। बट इन रियलिटी, हकीकत में, दे अंडरगो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशंस इन द नेबरहुड ऑफ देयर रेगुलर पोजीशन इन द लेटाइस। सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, यानी कि जो अपने पड़ोस के अतराफ उनका जान आना चालू है, मतलब पड़ोस में दूसरा है ना, तो वहां पे उनका अल्टरनेट हो सकता है, ऐसा 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 करते हो। समझ में आ रही क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. ये फ्लक्चुएशन की वजह से होता क्या? दिस फ्लक्चुएशन अराइजेस, कहां से ये फ्लक्चुएशन होते क्यों? अपने सही मुकाम पर तो है, उनकी अपनी मुकाम तो नहीं छोड़ रहे हो क्रिस्टल के अंदर। मिसाल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम अपनी जगह पे है, क्लोरीन अपनी जगह पे है, लेकिन हो रहा क्या? फ्लक्चुएशन भी होता बोल रहा हूं, लेकिन ये फ्लक्चुएशन होते क्या की वजह से? दिस फ्लक्चुएशंस आर ड्यू टू द हीट या थर्मल एनर्जी इन द लेटाइस। उनका जो लेटाइस के अंदर जो सोडियम क्लोरीन, उनको अपने पास, उनके पास हरारत है क्या नहीं, कुछ तो भी उनके पास थर्मल एनर्जी है क्या नहीं? अपन जो बोले ना वैसा है, जब जाके बैठे तो बैठ गए एक जगह सुकून से, हटते नहीं, हटते अपनी जगह से वहां के वहां फिरते,
काय की वजह से? कौन फिराता उनको? हीट, हीट, एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है, उनके पास हरारत है। देखिए भाई, एक है एटम अपनी जगह पे ऐसा ऐसा कर रहा, बाजू के बाजू जा रहा, मैं निकल रहा हूँ घर से, मेरा वहीं तक जा रहा हूँ, है कि नहीं? उतनी एनर्जी है। लेकिन वो अगर एनर्जी अगर ज्यादा रही, जरा ज्यादा खाया पिया हो रहा, तो अक्सर को आके भी नमाज पढ़ता हूँ। एम आई करेक्ट? यस Yes, सर। sir. क्या क्या हुआ? पहले कहां तक जा रहा था? लेकिन जब उसको हीट करे, एनर्जी बढ़ाए, टेम्परेचर दिए, तो फिर क्या करा उसके वाइब्रेशंस में अच्छी खासी, जब घर में एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा था, जब ज्यादा जो है तो उसका फ्लक्चुएशन नजर नहीं आया। लेकिन फ्लक्चुएशन नुमाया कब दिखता, प्रोनाउंस्ड कब होता, कंसिडरेबल या अप्रिशिएबल कब हो जाता? जब उसका टेम्परेचर ज्यादा रहना. इंक्रीज, ज्यादा रहेगा। बात ये कर रहे हैं कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स अगरचे कि अपने रेगुलर साइड पर हैं, बट दे आर मेकिंग द कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन द नेबरहुड, and this fluctuation are due to the temperature, and when the temperature of the solid or when the temperature of the crystal is increases due to the high temperature, these fluctuations, यानी कि ये अपने मुकाम से उनका जाना, it will looks pronounced. pronounced का मतलब क्या? नुमाइया, अच्छा खासा दिखता, दूर गए तो अच्छा लगता है, ऐसा 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 कर रहे। समझ में आ गई बात आपकी? चलूं आगे? यस सर। Yes, sir. सॉलिड के अंदर का पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले कि अपन इसके अलग अलग तो मैथमेटिकल प्रोसीजर पर जाएं, उससे पहले ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना। अब मुझे आप बताइए कि मिसाल के तौर पर ये एटम है, इन्हें ऐसा कर रहा अपने मेन पोजीशन पे, तो ये किसको जन्म देता जी? वेव, वेव। ये जन्म किसको देता? अपने मुतवातिर, अपने मीन पोजीशन पर जब वो फिरने लगेगा, अब ये अपने मीन पोजीशन पे फिरने को अब हम क्या नाम से पुकार रहे थे? वाइब्रेशंस। वो भी कौन से? Lattice vibrations. Yes, these lattice vibration motion can also produce the traveling waves. कैसी waves? Traveling waves. मैंने आपको इससे पहले साउंड के बारे में बताया था कि मैं सोर्स ऑफ साउंड हूं, है कि नहीं? मैं क्या करूं? ये मीडियम है, मीडियम किसका बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ Air का। पार्टिकल्स का है। यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड, यहाँ से आवाज निकल रही है, यानी कि मैं एनर्जी पैदा कर रहा हूँ। एनर्जी, मेरी पहली एनर्जी जाकर किसके ऊपर गिरी? पहले पार्टिकल के ऊपर। इन्हें एनर्जी जैसे लेता, क्या करता? अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होता। वाइब्रेट होता। उसकी वाइब्रेशन का एक लिमिट रहती कि यहाँ तक जाएगा, नहीं तो यहाँ तक जाएगा, एम्पलीट्यूड की एक वैल्यू रहती। और उसके पास जब एनर्जी, और मैं तो बात करते जा रहा हूँ, मैं एनर्जी पैदा करते जा रहा हूँ, तो फिर मेरी एनर्जी और इसको जितनी लेने की पहले उन्हें उतनी लेता, वाइब्रेट करना शुरू करता। बची हुई एनर्जी बाद में उन्हें किसको देता? नंबर 2 पार्टिकल को। नंबर 2 पार्टिकल को एनर्जी मिलती, उन्हें भी क्या करता? वाइब्रेट होता। Vibrations. उसको जितनी एनर्जी लगती अपने जो है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड घटाने तक उन्हें उतनी लेता, बाकी बची हुई किसको देता? 3 नंबर वाले को। 3 नंबर वाले को जैसे एनर्जी मिलती उन्हें वाइब्रेशन में वाइब्रेट। लिहाजा ऐसा होते होते एक ऐसी, ये जो ऐसा छोटे 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 मालिक्यूल का बना हुआ था, इन्हें कैसा दिखने लगता? Wave की शक्ल में. वेव की शक्ल अख्तियार कर लेता। इसको अपन बोलते थे साउंड वेव। वैसी लेटाइस वाइब्रेशन, वैसी ही लेटाइस वाइब्रेशन, जब हर एक एटम जब वाइब्रेट करना शुरू करेगा, लेटाइस वाइब्रेशन करेगा, तो ये लेटाइस वाइब्रेशन किसको जन्म देंगे? क्या पैदा करेंगे? दे विल प्रोड्यूस द ट्रैवलिंग वेव्स इन द लोकलाइज्ड रीजन। इनके वेव्स वो दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे उनके वेव्स? देयर waves are in the localized region of the vibratory atomic motion travel through the lattice, isn't it? सिंपल एग्जांपल इसकी कि वाइब्रेशन तो जगह पे छोड़ा, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से जो वेव हो रही है बहुत दूर तक जाती। सच ए वेव्स आर साउंड वेव्स मूविंग थ्रू द एयर, जैसा मैंने अभी बताया आवाज के वेव्स, या सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स किसको बोलते हैं जी? अर्थक्वेक के वक्त, जलजले के वक्त जमीन के अंदर जो होते ना एपी सेंटर के ऊपर, हालांकि वाइब्रेशन कहाँ होता? बोलते ना अपने, जब भी आपने खबरें सुनी होंगी अर्थक्वेक की, जलजले की,
तो उसको बोलते हैं ना, उसका एपी सेंटर किलारी था, उसका एपी सेंटर दक्षिण उत्तर से लेके 500 किलोमीटर दूर पर था। कहाँ होता जलजला, कहाँ पर जो है तो वाइब्रेशन होता, एपी सेंटर कहाँ रहता, किल्लारी में। झटके कहाँ महसूस होते, भीड़ में। एम आई करेक्ट? मतलब क्या Yes. कि ऐसे वेव्स इवन दो दे आर स्टार्टिंग एट ए सर्टेन पॉइंट, लेकिन उनके वेव बहुत दूर तक जाते हैं। तो वैसे ही क्या हो रहा, उस अंदाज की यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि लेटाइस वाइब्रेशन में जो एटम्स अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते, जिसको हम क्या नाम से पुकारते हैं, लेटाइस वाइब्रेशन। दे गिव राइज टू द वेव्स, they give rise to the waves. Am I correct? And these waves are traveling in the particular region or in the localized region of the crystal, and these localized traveling waves of the atomic vibration in the crystal or in the solid, it is called as phonons. समझ में आई बात आपको? लेटाइस वाइब्रेशन समझा पहले? फिर एक बात Yes, sir. एक 2 मिनट में बोल देता हूँ न्यू कमर्स के लिए। In case of solid or in case of the crystal, atoms are present at the particular position, but in reality these atoms in the position are no doubt there, but they execute oscillations or vibrations about their mean position, and these vibrations of the atoms in the solid is called as lattice vibration. आर यू गेटिंग नाउ तनाजा? रिपीट करो 2 मिनट के लिए, हालांकि बहुत देर से चालू हो गया लेक्चर। तनाजा, आर यू गेटिंग? Yes, sir. These lattice vibrations are similar to that of seismic waves, or these are the similar to that of sound waves. Yeah, in other words, you can say that due to the continuous fluctuation in the position of the atom, in case of the crystal lattice, there is a formation or there is a production of the wave in the अब बोलेंगे वेव कहाँ दिख रही, देखो ये सॉलिड है, ये क्रिस्टल, इसके अंदर वेव कहाँ दिख रही, ओपन आंख से नहीं दिख रही आपको वेव। सब ये बात आपको अर्थक्वेक की वेव दिखती क्या? देखो 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 ये वेव है अर्थक्वेक की, बोलते क्या, लेकिन महसूस तो हो जाता ना। तो वैसा ये सॉलिड के अंदर के क्रिस्टल के अंदर की बात चल रही कि क्रिस्टल के अंदर एटम जो कि अपने मखसूस मुकाम पर जरूर है, लेकिन वो अपने मखसूस मुकाम पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर क्या करते रहते, मुतवातिर वाइब्रेशंस करते, जो वाइब्रेशंस क्या कहलाते, लेटाइस वाइब्रेशन कहलाते। इन लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से क्या जन्म में आती, Wave. वेव जन्म में आती, और वो वेव को क्या बोलने का अपने को, जैसे वहां साउंड वेव बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर एटम्स के लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से जो वेव जन्म में आ रही है, और वो कैसी है, लोकलाइज्ड है, वहां के वहां तक ही है, लोकलाइज्ड ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशन इन केस ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल, इट इज कॉल्ड एज फोनोन्स। याद रखिए, 2 कंसेप्ट अभी हुए हमारे, लेटाइस वाइब्रेशन और दूसरा Phonons. फोनोन्स। बोले तो क्या, Phonons. फोनोन्स बोले तो वेव, जो कि काय की वजह से बनी, Solid. किसकी वजह से, Vibrations. वाइब्रेशन की वजह। किसके वाइब्रेशंस, या कौन से वाइब्रेशंस, लेटाइस वाइब्रेशंस। लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से लोकलाइज्ड रीजन में, छोटे रीजन में, या लोकलाइज बोल तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एटम के सॉलिड के अंदर ही एक मखसूस किस्म की वेव जो है तो जन्म में आती है, पैदा होती है, एंड दैट लोकलाइज्ड ट्रैवलिंग वेव्स, खाली वेव नहीं बल्कि वेव्स हर एक कर रहा ना, हर एक की वजह से एक एटम, या हर एक एटम की वजह से जो वेव पैदा होती है, यानी लोकलाइज्ड ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फोनोन। These phonons are quantized with the energy. सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर 5 एटम है, 5 एटम अपनी मीन पोजीशन पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनकी वजह से जो वेव तैयार हुए, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं, सबकी अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो एनर्जी उनकी क्वांटाइज सेल, डेफिनेट सेल, फाइनाइट सेल, समझता ना आपको। मिसाल के तौर पर पहले में एनर्जी, मिसाल के तौर पर अगर एनर्जी H इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, यानी कि पहले वाले की मिसाल के तौर पर N इज इक्वल टू 1, तो यह पहले वाले की E1 इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरे वाले की E2 इज इक्वल टू 2h न्यू, तीसरे वाले की मिसाल के तौर पर 3h न्यू। अब ये जो सबकी एनर्जी अलग अलग है, सबकी निकलने का अमाउंट अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं हम,
कैसे है बोलते वो? एनर्जी के मामले में फोनोन्स कैसे है? क्वांटाइल। क्वांटाइज्ड है। समझ में आएगा क्वांटाइज का कंसेप्ट? तनज़्ज़ा, महदी, यस अरबाज, Yes, जी sir. सर. So these phonons which are formed or which are produced in the solid, they are quantized. काय में quantized? In respect of energy. यानी कि सबकी एनर्जी अलग अलग। क्या कितनी एनर्जी है? कीमत बता रहे उसकी एनर्जी H क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू एच न्यू, या दूसरे अल्फाज में E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये क्या है? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेट करे तो क्या क्या चीजें लगी रहती उनके साथ? अभी बोला ना, वाइब्रेशन के साथ क्या क्या रहना? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, बराबर है Frequency. क्या? बराबर है तनाजा? तो वेयर ओमेगा अपॉन 2 न्यू इज द Yes, sir. which is equal to omega upon 2 pi, it is the frequency of vibration of the wave. ये फोनोन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जब भी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको अगर आप एमएससी को जाएं थर्ड ईयर के बाद एमएससी फिजिक्स करें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक अलग ब्रांच है। शायद इससे पहले भी क्लास में मैंने बताया था, इफ यू डूइंग द एमएससी एट यूनिवर्सिटी लेवल, देयर इज अ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऑप्शनल है। You can also take the specialization optional level के specialization electronics. You can take the specialization as solid state physics. You can take the specialization as nuclear physics. You will take the specialization as spectroscopy. अभी और 2-3 नवे भी आ गए, मटेरियल साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक खास स्पेशलाइजेशन है। और जब भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे क्या लगेगा वहां? एटम्स, वाइब्रेशन, फोनोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब भी हम सॉलिड की स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपने मुताले को बढ़ाएंगे, वहां पर बेसिक बेसिक चीजें जो बहुत अहमियत रखेगी, बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, अपना रोल प्ले करेगी, वो क्या क्या रहेंगे? क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटाइस, देन और क्या पढ़े थे अपन ने? बेस, यूनिट, यूनिट सेल, सेल पैरामीटर्स, देन फेस एंगल। उसके बाद यहाँ पर जो है तो अभी जब जो बता रहे हम लेटाइस वाइब्रेशन, और अभी क्या बोले? और फोनॉन्स। so these phonons and lattice vibrations play a very important role in the study of solid state physics. समझा इतना? यस सर। चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तीसरा चैप्टर शुरू करें जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तीसरे चैप्टर में 5 से 7 आर्टिकल्स हैं, लेकिन बिफोर गोइंग टू द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द, क्या नाम है तीसरे चैप्टर का? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। Solid. उसी के ताल्लुक से हम यहाँ पर बात कर रहे। कुछ हमने टर्म्स देखे, एक डिफाइन करे लेटाइस वाइब्रेशन, और दूसरा क्या डिफाइन करे हमने? सेकंड क्या डिफाइन करे? Phonons. फोनॉन्स। फोनोन्स। आई अंडरस्टैंड? Phonons. यस सर। Yes, sir. Now if you see can you see the can you see? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि लेटाइस वाइब्रेशन सॉलिड के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। सॉलिड के मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे? स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोले थे ना? यस सर। Yes, sir. अब उसमें की पहली प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट। किसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट? उर्दू में तो है क्या टर्म मालूम? किसी भी सॉलिड की या किसी भी जिस्म की का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाने के वास्ते लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक हीट। The amount of heat required या energy required to reach the temperature of 1 gram mole of a substance is called as
Are you there? Specific heat. Are you there, please? Yes, sir. Specific heat. हाँ, Yes, sir. चलिए, अगर उसको थर्ड तो हमारे थर्मल कंडक्टिविटी के या थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से बोलना है तो क्या फार्मूला है इसका? C is equals to dq by dt, rate of change of energy with respect to Time. Time. टेम्परेचर। Temperature. Sorry. यानी कि इतने टेम्परेचर पे कितनी हीट उसने ली, तो थर्मल स्पेसिफिक हीट इट कैन बी डिफाइंड एट C is equals to dq by DT. dt। Have you got? ये टर्म पढ़े ना आपने इससे पहले? Yes. स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वैल्यू, दो रहते उसके, CV और CP, सुने क्या आपने ये? Yes, sir. CV बोले तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट Constant volume. तो इसको कैसा लिखना आप? CV को dq by dt at V, और दूसरा क्या रहता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Pressure. इट इज इक्वल टू dq by dt at P। पहला लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का? कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सब्सटेंस इट इज इक्वल टू या इट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी और रिमेनिंग इज डन इन डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। पढ़े क्या पहला लॉ थर्मोडायनामिक्स में? dq is equal to dE plus pdV। हुआ तनाजा? Yes. Yes, sir. dq is equal to dE plus pdV, where dq is a change in internal energy and pdV is the work done। वर्क डन कैसे होता? by changing the volume। So if heat is added at the constant volume, second term is vanishes and therefore CV is equals to dq by, अगर हम यहाँ पे इस केस में अगर बोले यहाँ पे वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क होगा क्या? फिर ढक्कन ऊपर उठेगा क्या? नहीं, तो लिहाजा ये टर्म क्या हो जाएंगी? अगर V कांस्टेंट है तो dV क्या हो जाएगा? 0। लिहाजा ये टर्म पूरी की पूरी कितनी हो जाएंगी? 0. 0। तो उस वक्त अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या फिर? CV is equals to dq by dt at constant value, that is equal to dE by dt at constant value। यानी कि स्पेसिफिक हीट इज कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है? CV, यानी कि स्पेसिफिक हीट इट इज इक्वल टू हीट, दैट मींस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, that is heat required to reach the temperature of complete mass at constant volume of a solid by 1 degree centigrade is nothing but it is called as the heat capacity। इसको क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक हीट इज द हीट कैपेसिटी पर ग्राम या पर यूनिट वॉल्यूम। Volume. फिर एक बार लेटाइज वाइब्रेशन Volume. रुखाता हूं मैं। लेटाइज वाइब्रेशन किसको बोलते हैं? एक बार फिर याद कर रहा हूं न्यू कमर्स के लिए, किसको बोलते हैं लेटाइज वाइब्रेशन? पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल इन Crystal. lattice Crystal Crystal solid. about their mean position is Mean called position. as Lattice vibration. yes। जब हम सॉलिड को या क्रिस्टल को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वाइब्रेशन इंक्रीजेस। भाई कोई भी ऐसा कर रहा है, उसको हीट दिए तो बढ़ेंगे ना उसके वाइब्रेशन, तो बढ़ेंगे बोले तो क्या बढ़ेगा उसका? Yes, sir. Amplitude. So on heating, amplitude of the vibration increases, कब तक? Until they are so energetic that lattice breaks down। गरम करते जा रहे, ठीक है गरम करे, थोड़ा ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, लेकिन गरम करते जाएंगे तो क्या होगा? वो एटम अपने मीन पोजीशन पे हरकत करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ देगा। जब अपनी पोजीशन छोड़ देगा तो क्रिस्टल रहेगा क्या? लेटाइस रहेगा? No, sir. लेटाइस sir. ब्रेक हो जाएगा। The temperature at which this happens, जिस टेम्परेचर के ऊपर लेटाइस ब्रेक हो जाता, जिस टेम्परेचर पे लेटाइस ब्रेक हो जाता, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ऐसा कर रहा था, फिर बढ़ा, ऐसा करा, फिर बढ़ा, ऐसा करा, 32 दे दिए टेम्परेचर, ऐसा करते एटम अपनी जगह छोड़ देंगे। एटम ने अपनी जगह छोड़ दिए, इसका मतलब लेटाइस Breakdown. ब्रेक हो गया। Breakdown. इस टेम्परेचर पर लेटाइस ब्रेक होगा। The temperature at which there is a breaking of lattice, it is called as melting point of the solid। समझ में आ रही क्या बात? अपन बोलते हैं ना मेल्ट हो रहा, मतलब सॉलिड इसलिए रहेगा, उन्हें एटम छोड़ देंगे सब, तो फिर क्या होगा उस टेम्परेचर पर? वो
बिखरने लग जाएगा, सॉलिड 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 रहेगा क्या? नहीं. नहीं सर. At which this happen means at the temperature at which the lattice breaks is called as the melting point of the solid and substance become Liquid. liquid. तो वो हीट क्या हीट कौन सी, जब उसने हीट में यानी कि सॉलिड का लिक्विड बन गया, तो वो हीट कौन सी हीट कहलाई फिर? Specific heat. आपको बोलते ना एक फेज से दूसरे फेज में जाए, यानी कि हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी यहाँ पर, isn't it? So with this one, Yes. these 2, 3, 4 points are completed here today. So thank you for joining me. I am stopping the